2024. पहले मैं वहाँ पर एक इंटर्न थी. माई इंटर्नशिप लास्टेड फॉर 15 days or so, and then मैं वहाँ पर एक वॉलंटियर हूँ. Before I introduce our guest speaker for today, I would like to inform all of you कि हम लोग एक attendance form chat box में share करेंगे, and you have to fill your name and all your details in that attendance form, because according to that, everyone will be given the participation certificate. So kindly pay attention to the chat box. उसमें ही आपका link आएगा and you have to give us your name and detail, everything. And if you have any questions, you can always type it out in the chat box, and we will come back to them at the end of the session when we have time for the Q&A. Our topic for today is mindfulness. Mindfulness is the practice of being fully aware and present of this moment. It is engaged in the current moment with an open, non-judgmental, accepting attitude. It involves bringing your awareness to what you're experiencing right now, and whether it's your thoughts, your emotions, sensation, or the environment around you. So our guest for today is Mr. Ajit Kumar. Thank you for being here today, sir. He's a psychologist, clinical counselor, counseling rehabilitation psychologist, and clinical hypnotherapist. He's well versed with psychological first aid, crisis intervention, psychotherapy, training, capacity building, and mentoring. He is certified in various practices used in therapy and healing like DBT, RE, CBT, neuro-linguistic programming, healing, energy healing, and past life regression, and etc. We are extremely lucky and grateful to have you with us here today, sir. Thank you so much, and the floor is all yours now. Thank you. Thank you, Angelica. Thank you very much for such a great introduction. Yeah, hi all. Good evening. Friends. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Welcome Good you evening, all. ma'am. Good evening, sir. Yes. Yes. I would request everyone to switch on your camera and keep your mic mute. Any questions, you can raise the hand or you can type it in the chat box. So let us start. Are you all here? Yes, sir, we are here, but Yeah, not ready to great. open the camera. Yes. So let me start with, can you see elephant and a ant? आपको एक हाथी और एक चींटी दिख रहा है? Yes, क्या sir. आप ये बता सकते हो कि इसमें कौन किसको ज्यादा तंग करता है? Chiti. Ant is And elephant. Yes, Chiti. yes, yes. Okay. चींटी इतना बड़ा हाथी को ज्यादा तंग कर सकता है. ग्रेट. अब मैं आप सबसे बोलूंगा कि ये ऐसे जैसे फोटो में दिखा है वैसे अपना हाथ को क्लैस्प करके पकड़ लें और अपने दो उंगलियों के बीच में 1-1.5 सेंटीमीटर का गैप रखें और अपने मन में सोच ले. 1 से 15 तक गिनती करें. हाथ को ऐसे क्लैस्प करके रखें, अपने ये तर्जनी उंगली में 1.5-2 सेंटीमीटर का गैप रखें और मन में 1 से 20 तक गिनती करें. Sir, done. Great. Now we are going to our slide, human evolution. Hopefully हम सबको पता है कि हम जो विकास और हम में जो डेवलपमेंट हुआ है इस यहाँ से एवोल्यूट होके यहाँ तक पहुंचे हैं. तो क्या कोई बोल सकते हैं कि ये पहले है ना हमारे पूर्वजों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से होती थी? क्या कमियां थी, क्या डर थे उनको? एनीबॉडी?
Sir, on We, hospital. we used to go in search of food, sir. Yes, We- search of food. Mhm. and animals, threat from wild animals, wildlife, like tiger and all. Yes. वाइल्ड लाइफ से थ्रेट था, खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। वेरी गुड। तो हमारा मेन परेशानी दूसरे एनिमल से थे, है ना, सही एक रहने के लिए एक जगह से थे, खाने के लिए थे, और परिणाम स्वरूप हम अभी कम से अभी इस स्थिति में हैं जहां पे जिंदगी में बस भागदौड़ ज्यादातर दिखता है कि नहीं? Yes, sir. अभी किस चीज का खतरा आया है? अभी किस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है? जो खतरा पहले हमारे पूर्वजों को थे, खाने को लेके कोई खतरा, दूसरे जानवरों से खतरा, है ना, अभी एकदम कंक्रीट घर आ गया, पैक्ड फूड मिलते हैं जहां पे हम हैं। Sir, पे- I guess regarding our mental health, Yes. Pardon? In today's world, our mind has become so mind, dangerous. mental health. Mind. Like, यस, yes, जितना ज़्यादा Yes. वर्कलोड बढ़ता जा रहा है आजकल, लोग इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं कि इस वर्कलोड को, वो प्रेशर को वो इतना मतलब उसको सहन कर सके। हाँ, ये सबसे बड़ा खतरा Yes. हो रहा है, आई गेस। यस। मैं प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर, यस सर। Are you all Sir. able to see presentation? I think अमन Yes, सर sir. है सर। No. नहीं हाँ, दिख रहा। सब था। यस, No, sir. शीबा, No, sir. शीबा से अनोनेट कुछ हो गया है। ओके So now it is. visible, sir. ओके। सो पहले जमाने पे खाना और दूसरे जानवरों से हमें प्रॉब्लम हुआ करता था, अभी वो सब प्रॉब्लम हट गए हैं। अब हमारा, है ना, हम खुद से ज्यादा परेशान हैं, ऐसे बोले तो कोई प्रॉब्लम? No, sir. No sir, no sir. यस, है ना। तो ये एक सच्चाई है कि आजकल हमें खुद से ज्यादा, है ना, हम डरते हैं तो हम खुद से ज्यादा डरते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं है, हम भागदौड़, इधर उधर भागदौड़ रहे हैं। नाउ वी एज ए सेल्फ, हमारा रिलेशनशिप, वी आर रिलेटेड टू लाइफ को सिंपल करने के लिए हमें स्पेसिफिसिटी की जरूरत होती है, क्लैरिटी की जरूरत होती है। तो हमारे लाइफ में एक इंसान 7 चीजों से रिलेटेड रहते हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो उनके लॉजिक युक्ति से, उनका इमोशन भाव से, उनका शरीर बॉडी, उनका परिवार फैमिली, उनका वर्क प्रोफेशन के काम से, सोसाइटी समाज से, एंड आध्यात्मिक रिलेशन स्पिरिचुअल रिलेशन। बाकी जो भी चीज है इन 7 के अंदर ला सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we are talking for simplifying our life so that हमारा presence of mind ज्यादा हो और clarity आ जाए लाइफ में। तो नॉर्मली क्या होता है, ये 7 के अंदर अगर प्रॉब्लम समाज का है तो वो शरीर में आके असर करता है, काम का है तो वो परिवार में असर करता है, परिवार का है तो वो आपके युक्ति में असर करता है, ये इधर उधर जाके असर करता है। Isn't it? Yes, sir. है ना। बॉस अगर कुछ बोल दिया तो वो घर में हमारे अंदर हम वो घर में दिखाते हैं, या अपने शरीर से दिखाते हैं, इधर उधर मार के, है ना, गुस्सा करके, अब भाव में दिखाते हैं, कुछ उल्टा सीधा सोच के अपने युक्ति में दिखाते हैं, नहीं तो वापस ड्राइव करते वक्त ज्यादा हॉर्न मार के सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, भगवान या जो भी यूर हायर पावर है उनको कोस के उधर दिखाते हैं, तो ये इंटरलिंक इधर उधर हो जाता है। तो इसको सेम उस सेक्शन में रखना अगर हम सीख गए, वर्क प्लेस इशू एट वर्क प्लेस, फैमिली इशू एट फैमिली, सोशल इशू सोसाइटी में, स्पिरिचुअल इशू स्पिरिचुअल एरिया में, बॉडी का बॉडी में, इमोशन का इमोशन में, लॉजिक का लॉजिक में, ये एक बार हम सीख गए तो हमारा लाइफ और सिंपल हो जाएंगे और हमें क्लैरिटी ज्यादा मिलना शुरू होगा।
तो अगर इसे हम और शॉर्टर करें तो दीज आर द 4 एरियाज इन अवर लाइफ: बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल. दीज आर द 4 एरियाज जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हम इन्फ्लुएंस करते हैं. इट्स गिव एंड टेक वाला चीज है. इज इट गेटिंग क्लैरिटी? क्लियर हो रहा है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ? सर बायोलॉजिकल Okay. और साइकोलॉजिकल आपस में कनेक्टेड भी तो होते हैं ना? यस यस, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि ये सब हम में है. तो इसे अलग अलग करके देखना भी हमें सीखना चाहिए. नहीं, शरीर Yes, को sir. प्रॉब्लम, हाँ, ये जब हमें कोई भी एक दर्द जब होता है ना, द पेन, जो पेन के साथ हमें सफरिंग होता है उसमें 2/3 सफरिंग साइकोलॉजिकल होता है. बायोलॉजिकल पेन के साथ एंग्जाइटी और अप्रीहेंशन, ये तीनों मिलके हमारा 100% सफरिंग होता है. अगर हम मानसिक तौर से या साइकोलॉजिकल तौर से उसे डील कर लें, जहां पे माइंडफुलनेस हेल्प करता है, हमारा एंग्जाइटी और अप्रीहेंशन कम हो जाएगा तो 2/3 ऑफ पेन विल रिड्यूस. हमारा सफरिंग विल रिड्यूस बाय 2/3 एंड इट इज अ गुड क्वांटिटी. 2/3 बहुत होता है, isn't it? Yes, sir. So these are the 4 areas which is influencing us, which is like for health, becoming healthy and becoming disturbed. दोनों के लिए ये 4 areas है. Yes. Now हम ये डेवलपमेंट होके यहां तक पहुंच गए. अब हमारा वो चींटी कौन सा है जो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देता है? यू कैन इधर टाइप और से इट. Mind, sir, mind. Psychological. There are thoughts. थॉट, माइंड. यस यस, और आने दो. Psychological thing. साइकोलॉजिकल थिंग. यस, Sir, आप टाइप कर सकते हो. lifestyle. लाइफस्टाइल, ओवर थिंकिंग, थॉट, माइंड, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और Fear of future. फियर ऑफ फ्यूचर, डिजायर्स. यस जानकी, यू कैन से इट. एंग्जाइटी. Sir, यस. societal pressure. Social pressure. Okay. Lack of clarity, competition. Good, good. Now, जितने आप लोगों ने बोला, जितनों ने भी बोला उसमें मैक्सिमम आप यही बोला: थॉट्स, माइंड, साइकोलॉजिकल. इनर वर्ल्ड, हमारे इनर वर्ल्ड में ज्यादा प्रॉब्लम है. ओनली वन सेड लाइक सोशल प्रेशर. सो जो हम ऊपर बोले थे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी हम साइकोलॉजिकल एरिया में हमें फेस करना पड़ रहा है. एंड दैट इज अवर इनर वर्ल्ड, इजंट इट? Yes, sir. यस. अब बस वो इनर वर्ल्ड में रहते हुए आप ये बताओ कि हमारा ये माइंड में या थॉट में हमारा एक्सपेक्टेशन एक्चुअली क्या रहता है? कहाँ पे बदलाव आना है? हमारा डिमांड क्या रहता है या हमारा रिक्वेस्ट क्या रहता है? कहाँ पे बदलाव आना है? सर Sir, to excel at everything. Yes. सर टू We are disturbed. We are disturbed, and like yes, in others or environment. Normally, we think about, we demand or we expect others to change, isn't it? Yes, sir. हम ये पूरा पर्यावरण बदल जाए, मम्मी पापा अपना स्वभाव बदलो या गर्लफ्रेंड बदलो, बॉयफ्रेंड बदलो, है ना, वो हस्बैंड बदलो, वाइफ बदलो, भाई बदलो, बहन बदलो, दूसरे बदलो, टीचर बदलो, एवरीवन, दूसरे, ये पूरा एनवायरनमेंट में हम ज्यादातर हम ये करते हैं कि यस, आउटर एनवायरनमेंट आप लोग बदलो, शरीर बदलो, है ना. हम शरीर को भी क्रिटिसाइज करते हैं, एनवायरनमेंट को भी ब्लेम शिफ्ट करते हैं. जबकि अब हमारे इस जवाब से हमें क्लियर हो गया है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस लाइज इन अवर इनर वर्ल्ड. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज फ्रॉम
inside ourselves. तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ, हमें पहले खुद बदलना है, फिर वो बदलाव हम जो चाह रहे हैं वो बाहर धीरे धीरे दिखना शुरू होगा. एल्स अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हमेशा हम एक परेशानी में रहेंगे. Yes, sir. और इस इनर वर्ल्ड में, ये इनर वर्ल्ड का प्रोसेसिंग ये 3 चीज करते हैं: थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस. हमारे सोच, हमारे भाव और हमारे व्यवहार, ये तीनों मन का कंटेंट है. प्रोसेसिंग ये तीनों करते हैं. इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? No, sir. तो अभी हमें हमारा इनर वर्ल्ड में अगर बदलाव लाना है तो कहाँ काम करना है? इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेसिंग में. हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस में, क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक्ड है. और इन तीनों में सबसे इजी कौन सा है? सबको अलग अलग रहता है. यू कैन चूज इट. सर आई गेस थॉट्स. यस, यू कैन टाइप इट. हाँ, आप टाइप कर सकते हो या आप बोल सकते हो. थॉट्स, ओके. Action. एक्शंस, I ओके. think so. Actions. यस, एक्शंस. इमोशंस, ओके. सो थॉट्स, इमोशन और एक्शन, ये 3 चीज है. दिस फॉर्म्स अ माइंड. तो अपना अपना एक एरिया होगा. यू कैन चेंज योर थॉट्स थ्रू योर एक्शंस, यू कैन चेंज योर इमोशंस थ्रू योर एक्शंस, यू कैन चेंज, है ना, वाइस वर्सा आल्सो. इवन थ्रू थॉट्स यू कैन चेंज योर इमोशंस एंड एक्शन, है ना. इमोशन के द्वारा अपना थॉट्स और एक्शन भी बदल सकते. ये तीनों इंटरलिंक्ड है. तो इसमें से एक आप चुन सकते हो, है ना. आज हम प्राइमरीली थॉट्स बेस्ड जाएंगे. अगेन आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग सब अपना उंगलियां वापस ऐसे क्लास्प करें. पहले ये एक्टिविटी कर लो, फिर फॉर्म फिल करना. अपना हाथ को ऐसे, है ना, और ये दोनों उंगलियों के बीच में पहले की तरह 1-1.5 सेंटीमीटर का कंफर्टेबली डिस्टेंस रखें. अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए. आपके ये दोनों उंगलियां चुंबक बन रहे हैं. योर फिंगर्स आर बिकमिंग मैग्नेट. आपके उंगलियां चुंबक बन रहे हैं. आपका फिंगर्स आर बिकमिंग मैग्नेट. आपके उंगलियां चुंबक बन रहे हैं. योर फिंगर्स आर बिकमिंग मैग्नेट. आपका उंगलियां चुंबक बन रहे हैं. योर फिंगर्स आर बिकमिंग मैग्नेट. आपके उंगलियां चुंबक बन रहे हैं. योर फिंगर्स आर बिकमिंग मैग्नेट. Okay, can anybody say what happened? Sir, I don't know, but Yes, sir. actually my fingers getting attracted towards each other. Your, okay, your fingers got attracted each other. Okay. Yes, Saurabh, you were saying. Huh. Sir, there was suggestibility level high, so my fingers attached to each other like magnet. Yes, yes, your fingers got attached. You can also type. चुंबक Okay, बनने Thank के you. लिए. Thank you, sir. they came closer. Yes, yes, yes. सर जो आपने बताया वो हमारे थॉट प्रोसेस में गया, तो उस थॉट प्रोसेस ने हमारे फिंगर्स को मतलब किया कि हाँ Yes. वो एक्चुअली में मैग्नेट की तरह कर रहे हैं वर्क, एंड दे वर गेटिंग अट्रैक्टेड विद ईच अदर. Yes. तो पहले भी तो आप हाथ ऐसे रख के 20 तक गिनती किए थे, तब हुआ था? यस. नहीं, नहीं, तब नहीं हुआ, अब हुआ. बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन दैट थॉट, Thought. on your thought that time. Yes. That's why. You are focusing on a thought, what you hear or what you think or what you experience, और वो मैनिफेस्ट हो रहा है. पहले 20 तक जो गिनती किया, ऑलमोस्ट उतना टाइम भी मैंने बोला नहीं, है ना, या इक्वल समझ लो, जो भी हो, फिर भी वो एक्शन हुआ ना. लोग वो थॉट एक्शन में कैसे आ गया. तो आप अभी सोचो, हर एक दिन
आपको कितना मैसेजेस, कितना इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रहे हैं, समूह से, मीडिया से, खुद से, है कि नहीं? आर यू अवेयर ऑफ इट कि कितना अंदर जा रहा है, क्या आप ले रहे हो, क्या आप लेके घूम रहे हो? Yes, हम sir. मन एक नाम बोल देते हैं, मगर इस मन में क्या चीज से भर रहे हैं, वो हम पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे, हम बस भागदौड़ कर रहे हैं। या फिर हमें पढ़ना है, या फिर हमें खेलना है ना, या काम करना है, या परिवार देखना है, घर के कामों में बिजी हैं, ऑफिस के कामों में बिजी हैं, मगर खुद के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं देख रहे हैं। बहुत Yes, कम लोग ma'am. हैं जो उसके लिए, है ना, प्रयत्न कर रहे हैं, isn't it? तो मेरा आज यही रहेगा कि आप लोगों को मोटिवेट करें कि लुक इनसाइड योरसेल्फ, हाउ टू लुक इनसाइड योरसेल्फ, व्हाट टू लुक इनसाइड योरसेल्फ। ओके ओके, सो व्हाट हैपेंस थ्रू योर थॉट, इमोशन, बिहेवियर, आउटर चीजें, ये सब हमने बता दिया। ओके, सो ये थॉट का इंपॉर्टेंस ये है कि थॉट्स यू आर हैविंग नाउ विल डिसाइड हु यू बिकम टुमारो, इजंट इट? हम कल क्या रहेंगे वो आज, अभी हम कौन सा सोच लेके घूम रहे हैं वो निर्णय करेगा। अब आप सब अपने अंदर एक बार झांक के देखें कि आज सुबह से इस पल तक आपके अंदर सबसे ज्यादा सोच वर्तमान के थे, कि उस वर्तमान में आपका पास्ट भरा था कि फ्यूचर भरा था? प्लीज एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, खुद को एक बार एनालिसिस करें, जस्ट फॉर 15 to 20 seconds. यस, जो भी जवाब होगा आप लोग अपने पास रखिए, क्योंकि दूसरों को बता के कोई फायदा नहीं है, खुद को जानना इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज क्वाइट नॉर्मली इट इज सीन दैट जो काबिलियत इस वातावरण में, सराउंडिंग में, या एनवायरनमेंट में, या बॉडी में, हम जो बोले थे, है ना, सोसाइटी में, बॉडी में, है ना, और अपने एनवायरनमेंट में, ये काबिलियत नहीं है कि वो पास्ट में जाए या फ्यूचर में जाए। हमारा बॉडी और हम जिस वातावरण में, जो एनवायरनमेंट में है, ये दोनों कभी फ्यूचर में या पास्ट में नहीं जाता। ऐसे कोई है जिनका बॉडी या एनवायरनमेंट कभी पास्ट में या फ्यूचर में गया है? यस जया सोलंकी, आपका गया है? हाँ सर, होता है। शरीर जाता है फ्यूचर में? मन जाता है, हाँ, मैंने फ्यूचर में नहीं अभी, जाता है, पास्ट में जाता है। हाँ, तो शरीर और एनवायरनमेंट जाता है कि मन जाता है? मन जाता है। यस, हम भी वही बोलना चाह रहे थे कि मन को ही वो एक क्षमता है कि वो पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है। हमारा शरीर और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी फ्यूचर में या पास्ट में नहीं जा सकते। अगर हम, है ना, ये कोई भी डिस्टरबेंस जो हम बोलते हैं वो तब होता है जब मन अपना शरीर और वातावरण से अलग हो जाता है। तो माइंडफुलनेस एक ऐसे कला है, एक ऐसा स्टेट है, ये एक ऐसा प्रोसेस, प्रोसीजर और स्टेट है जो हमारे मन को हमारे शरीर और वातावरण के साथ वर्तमान में रखता है। द प्रेजेंट, टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आप लोग अपने अंदर झांक के देखें कि आप लोगों का स्ट्रेस का सबसे ज्यादा कारण आपका पास्ट और आपका फ्यूचर से ही आता है, isn't it? और हम उसको ब्लेम शिफ्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और अपने बॉडी में। yes. तो इसके लिए मुक्ति पाना है हमें इस चीज से, इसके लिए एक चाबी है, वो इनर वर्ल्ड का चाबी चाहिए हमें। वो चाबी है बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट।
अपने आप को वर्तमान के पल में रखना, यही एक चाबी है जिससे आप अपने कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी के, आपके लाइफ नेवर कम्स विथ ईज। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे। उस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड लाना पड़ेगा, अपने में क्लैरिटी लाना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्लैरिटी लाने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका है, बोले तो एकमात्र तरीका भी बोल सकते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाना और पूरी तरह शरीर और वातावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह प्रेजेंट में रहना। ये तीनों एंटिटी, एनवायरनमेंट, बॉडी एंड माइंड, जब प्रेजेंट में आ जाते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाती है। एग्री? अगर कोई एग्री कर रहे हैं तो प्लीज अपना थंब रेज करें, प्लीज, इलेक्ट्रॉनिक थंब। दोस हु आर लिसनिंग प्लीज। यस, यस। सर जब प्रेजेंट में आ जाते हैं तब क्या होता है सर? आगे आगे आपको पता चलेगा। गुड, हैप्पी टू सी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल। ओके, हैप्पी टू सी इट, ऑल आर लिसनिंग, वेरी गुड। ओके, तो अभी एक प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। हम एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे अभी, 7 से 8 मिनट लगेगा। ओके, सो सब अपने बैकबोन को थोड़ा कंफर्टेबली स्ट्रेट कर ले, एकदम स्ट्रेट नहीं, कंफर्टेबली स्ट्रेट कर लें अपने बैकबोन को। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सिट इन ए कंफर्टेबल पोस्चर, कीप योर बैकबोन कंफर्टेबली स्ट्रेट। Yes, sir. 3 लंबा सांस ले। 3 लंबा सांस, और 3 लंबा सांस लेके आराम से अपना आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अपने शरीर के सारे मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, सिर के ऊपरी वाला हिस्सा, अपना ध्यान को सिर के ऊपर वाला हिस्से पे ले जाएं, टू टॉप ऑफ योर हेड, बैक ऑफ योर हेड, सिर के पीछे वाला हिस्सा, आपके फोरहेड, माथे पे ले जाएं, अपना पूरा ध्यान को अपना माथे पे ले जाएं। आपके ध्यान को आपके आंखों के पलकों पे ले जाएं। जहां ध्यान जा रहे हैं वहां का मसल्स लूज छोड़ें। आंखों के पुतलों का भी मसल्स लूज। आपके कान में ले जाएं आपका ध्यान, कान का मसल भी लूज छोड़ें। आपके गाल का मसल्स लूज छोड़ें। आपकी दाढ़ी, जीभ, होंठ, आपका ध्यान पूरी तरह आपके गले पे ले जाए। आपके कंधों पे ले जाएं। कंधों का मांसपेशी पूरी तरह ढीला छोड़ें। आपकी हाथ, दाएं और बायां हाथ, कलाई, उंगलियां, मसल्स लूज छोड़ें।
आपके कमर के मसल्स लूज छोड़े, छाती, पेट, लोअर बैक, हिप, एब्डोमेन, थाइस, घुटनों का मसल्स लूज छोड़े, पैरों का मसल्स लूज छोड़े, शरीर के सारे मसल्स को लूज छोड़े, और अपने ध्यान पूरी तरह अपने सांस पे लाएं। फोकस ऑन योर ब्रेथ, focusing on your breath, just loosen all the body muscles. Observe your inhalation and exhalation. सांस का लेना और सांस का छोड़ना। कोई सोच बीच में आके आपको इधर उधर ले जा रहे हैं तो वापस आप अपना फोकस को सांस पे ला सकते हो। कोई यादें, कोई भाव आप में आ रहे हैं तो आपका ध्यान को आप वापस अपने सांसों पे ला सकते हैं। इस समूह से पूरी तरह कटकर अपने शरीर और अपने मन के साथ कुछ पल बिताएं। सोच चल रहे हैं तो चलने दो। भाव कुछ आ रहे हैं तो बस उसका निरीक्षण करते रहिए। और शरीर में कुछ हो रहा है तो बस उस स्थान पे पूरा ध्यान ले जाएं और बस एक निरीक्षक बन के बैठिए, एक दृष्टा बन के बैठिए। जो भी हो रहे हैं होने दो। कुछ पल खुद के साथ, खुद में क्या हो रहा है ये जानते हुए हाँ, मन का काम इधर उधर भटकना है और आपका काम उसे वापस सांस पे लाना है। आपका ध्यान सांस पे रहे। सोच, भाव या शरीर उस ध्यान को इधर उधर ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक निरीक्षक बन के, बस एक दृष्टा बन के जस्ट ऑब्जर्व, बी एन ऑब्जर्वर। एक अच्छा निरीक्षक बनिए। शरीर के सारे मसल्स लूज, सांस पे ध्यान। अब आप अपने पैरों से, जैसे पेड़ के जड़ धरती पे जाते हैं वैसे ही अपने पैरों से जड़ धरती से जुड़ते हुए इमेजिन करिए। धरती का काम भार उठाना है, तो आपके मन और शरीर में जो भी भारीपन है
वो पूरा धरती पे छोड़ दीजिए। Roots from your legs are going down into earth. Earth know how to take the weight. So आपके सारे भारीपन को आप धरती पे छोड़ दीजिए। हो सके तो खुद को एक लाइट बॉडी बनाइए। आप प्रकाश से भरे हुए हो। यू आर ब्राइट वाइट लाइट। You know nothing can hold on to light. जो भी आपका भारीपन है, अगर आप अपने आप को लाइट से भरा हुआ बॉडी बना रहे हो आपके इमेजिनेशन में, ऑल द वेट्स विल फॉल डाउन। लेट इट गो टू मदर अर्थ। धरती पे चले जाने दो। आपका मन और शरीर बस छोड़ रहा है। Focusing on your breath, keeping your body muscles loose, imagining yourself connected to earth. You are becoming a body made up of light, and you are just allowing all the heaviness, pain, stress, disturbance, everything to go down into earth. You are focusing on your breath, keeping your body muscles loose. Just observing yourself and allowing everything to just go into earth. Now gradually focusing your breath, you can gradually move your fingers in your feet and your hand. Slow movements, knowing the movements. Enjoy your body moving, the fingers. You are taking breath. हम सांस ले रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। हम सांस ले रहे हैं। अपने शरीर और मन पे आभारीपन जताएं। ये शरीर और मन को एकत्रित करते हुए इस सांस पे अपना आभारीपन जताएं। Be grateful to your mind, your body and your breath. Showing gratitude to your body, your mind and your breath. You can take 3 deep breaths. With that filled gratitude, you can have a smile in your face. And gradually you can open your eyes, coming to here and now in the present moment. पूरी तरह अपने मन शरीर को अपने सांस के साथ जोड़ते हुए वर्तमान के पल में आए। और आराम से एक मुस्कुराहट के साथ अपना आंखें खोलें।
जब आप लोग आंखें खोल दिए हो तो प्लीज एक बार अपना थंब प्रेस करके दिखाएं, इलेक्ट्रॉनिक थंब। यस, गुड। Yeah, happy to see all the responses. Everyone is responding. Thank you. So what we now practiced is observing your body, thought, and grounding yourself. Okay. तो ये कॉम्बिनेशन है दो तीन चीजों का, जो अभी हमने तकरीबन 8-9 मिनट का किए हैं। अगर ये प्रैक्टिस आप डेली 2 बार दिन में सुबह शाम 2 बार करोगे, आपको ड्रास्टिक चेंजेस 3 हफ्ते के अंदर दिखना शुरू हो। इनिशियली तकलीफें सबको होती है ना। मेरा सोच, मेरा ध्यान को इधर उधर ले जा रहा है। हाँ, ले जा रहा है, तभी तो हम ये कर रहे हैं कि ध्यान को वापस हम तक रखने का हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब यह एक चीज याद रखें, जब भी आप लोग नर्सरी या केजी में गए थे, तब अंग्रेजी या हिंदी अक्षर एक लेटर लिखने में आप लोग, हम सब हफ्तों लगा दिए थे, मगर विथ रेगुलर प्रैक्टिस उतने ही टाइम पे आज हम नोवेल लिख देंगे, है कि नहीं। सो प्रैक्टिस अगर हम अक्सर करते रहेंगे तो हमें बहुत नहीं, हम जहां चाह रहे हैं वहां ध्यान देने का हमें काबिलियत आ जाएगी, और हम में और हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो जानने का काबिलियत हमें आ जाएगी। सो अभी जो आपने किया, तो इस शरीर से जुड़ते हुए, सांस से जुड़ते हुए, अपना सोच और भाव का निरीक्षण करते हुए, या वातावरण, अपने सराउंडिंग को जानते हुए जो पल हम काटते हैं वो हमें वर्तमान में लाते हैं। एंड द प्रैक्टिस ऑफ being in present, getting in connect with present, fully in the present moment में अपने मन को शरीर के साथ, वातावरण के साथ लाने को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो इसमें निरीक्षण काम करता है, हमें बस एक निरीक्षक बनना है। जब हम निरीक्षण करते हैं तो हमारे ध्यान को हम जहां चाह रहे हैं वहां ले जा पाएंगे, तब हमारे जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। जब हमारे अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारा नियंत्रण पूरी तरह हमारे पास रहता है। बिना जागरूकता के, विदाउट अवेयरनेस, हम हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। So mindfulness can be said as user manual of a human being, क्योंकि ह्यूमन के पास बीइंग भी साइंस बोलता है, ह्यूमन बीइंग, and that being can be attained only through awareness. For awareness you need to attend. To attend you have to observe. तो आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो? ये प्रैक्टिस, ये ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस हम कहाँ कहाँ करें? सो अभी ऑब्जर्वेशन आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपका शरीर को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपका सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ नहीं तो हमारे जिंदगी में सबसे प्यारा चीज हमारा सांस है। 2 मिनट ये सांस ना रहे तो हमें पता है क्या होगा। तो इस सांस से प्यार करें, वो आभारीपन अपने सांस से जताएं, बस अपने सांस पे ध्यान दे। जब भी आपको कुछ भी तकलीफ हो रहा है, डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू, या स्ट्रेस इज इक्वल टू माइंड नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट विथ बॉडी एंड एनवायरमेंट। तो वो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला मन में याद रखें। सांस पे ध्यान दोगे, शरीर का मसल्स लूज छोड़ोगे, आप वर्तमान में आ जाओगे। क्योंकि डरने के लिए, गुस्सा करने के लिए
और एंग्शियस होने के लिए हमें शरीर का मसल्स को टाइट करना पड़ता है। शरीर का मसल्स लूज छोड़े तो आप डर नहीं सकते, एंग्शियस नहीं हो सकते और गुस्सा नहीं कर सकते। So you can observe your thoughts, emotions, body, surroundings and breath to practice mindfulness. आपको क्या फायदा होगा ये तो मुझे पता नहीं कि आप इसमें से क्या गेन करोगे। सॉरी, आई डोंट नो, आई एम ट्रूली सॉरी। हाँ, मगर इतना मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि आपका एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्सिविटी, जजमेंट्स, ये सब चला जाएगा और भी बहुत से चीज चला जाएंगे। ये जो बैगेजेस आप पास्ट से जो लेके घूम रहे हैं ये तो जरूर चला जाएगा, इतना में आपको नुकसान जरूर होगा, इन चीजों का नुकसान जरूर होगा। फायदा क्या होगा वो आप ही बता पाओगे। सो again I'm linking it to brain, thought mind brain system जो है, you can use your mind to change your brain, to change your mind for the better। जब आप अपना मन का उपयोग करके मस्तिष्क में एक परिवर्तन ला रहे हैं तो मस्तिष्क फिर वो परिवर्तित मन को ही एक्टिवेट करेगा। हाँ, एक चीज जरूरी, प्रैक्टिस रेगुलर होना है, कंसिस्टेंट होना है, ईमानदारी के साथ करना है, खुद के साथ ईमानदारी निभाना है। दूसरों का तो बाद की बात है, खुद से जरूर ईमानदार रहना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल बी कंटिन्यूड एंड आप सबको शुभकामनाएं फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ लाइफ विथ माइंडफुलनेस। सो आई एम एंडिंग हियर। एनी question and answers, discussions, please? Yes, sir, I want to ask you something. Yes. Yeah, please. Arushi, you can ask. Yes, Tanvi, you can ask. In 300 meters, turn left. सर Yes, अच्छा लगा आपका सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। sir, आप आरुषि पूछ रही हैं? Let yes, Tanvi complete, Arushi, please. जी। Yeah. सर आपने जो बताया कि फियर हो या कोई भी मतलब नेगेटिव इमोशन Take the next left. तो भी हम उसको मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस समय अगर हम टेंस हैं तभी हम फियर में हो सकते हैं और अगर हमने मसल अपनी मतलब लूज कर दी तो हम फियर में नहीं रहेंगे। लेकिन सर फियर तो ऐसी कंडीशन होती है ना, जो सामने एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको उससे लड़ना है। माना Continue for 3 आप kilometers. एक ऐसी कंडीशन में है, डेंजर है कोई, तब आप फियर में आ जाते हैं। अगर आपने अपने को फियरलेस कर दिया तो आप भले ही आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, लेकिन उस परिस्थिति से जो लड़ना था आपको, कैसे हम उसके लिए तैयार होंगे? मतलब मेरा एक क्वेश्चन है। हम एक Yes. निश्चिंतता वाली अवस्था में आ जाएंगे, सामने Yes. स्नेक है या इवन हेडमास्टर है या Yes, प्रिंसिपल Tanvi. है, जो भी Yes, है, yes. हमें I डर लग रहा है। understood. Yes, I understood your question. Very good question. Again, Tanvi, मैंने बोला हम वर्तमान कॉन्टेक्चुअल एनवायरनमेंट, बॉडी और माइंड को प्रेजेंट में लाना है। एंड देयर इज नो नेगेटिव इमोशंस, इवन फियर इज ए हेल्दी इमोशन। सारे इमोशन हेल्दी इमोशन है, देयर इज नो नेगेटिव इमोशन। ओके, एवरी इमोशन इज हेल्दी इफ इट इज यूज्ड इन अ राइट वे। आपने जो डर अभी बोला, सांप आ गया या कोई डॉग आ गया काटने या शेर आ गया, यस, वो एनवायरनमेंट के साथ, उस सराउंडिंग में बॉडी के साथ मन को लाइए, है ना। वहां पे जो डर है वो डर उचित है। हम अभी इधर जो स्टार्टिंग से बातें कर रहे हैं, हम जो हमारा पास्ट और फ्यूचर को लेके, जो एंग्जाइटी को लेके, एंग्जाइटी इज लाइक परसीव्ड, है ना, डर विदाउट डेंजर, है ना, वो विदाउट डेंजर जो हमारे अंदर फियर आते हैं, उसको माइंडफुलनेस क्या है, आपको वर्तमान में लाता है। तो वर्तमान में अगर डरने का है तो डरिए,
डरिए, मगर उस डर के साथ खुद को बचाना भी तो है। डर ज्यादा हो जाए तो आप बचा पाओगे आपको? तो हर चीज लिमिट में होना है, तो वो लिमिट के लिए हमें वर्तमान में रहना है। डिड आई आंसर यू तन्वी? मैंने वो डर पूरी तरह मिटाने का बात ही नहीं किया, वर्तमान में जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए। माइंडफुलनेस इज एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग इन, ऑन एंड अराउंड यू, in touch with reality, and reality is present. सर सपोज कोई एब्यूसिव पार्टनर्स होते हैं, वो पास्ट है बहुत ज्यादा कि ये व्यक्ति रोज ही माना घरेलू हिंसा होती है ना, किसी पत्नी को लगता है ये पति आता है और रोज मुझे मारता है। अब वो उसके आने का टाइम होगा ना, तो उसको डरने लग जाएगा, उसको डर लगने लग जाएगा, उसके कदमों की आहट भी आएगी, तो वो पत्नी डरने लग जाएगी। अभी ऐसे में Yes. कैसे वो डर पे काबू पाएगी सर? ओके, ट्रॉमा है, अभी आपने जो बोला इसे ट्रॉमा कहते हैं। अब ये ट्रॉमा जो है वो खुद को काबिल नहीं बनाएंगे तो इस ट्रॉमा से बाहर कैसे निकलेंगे? उनको एक उचित वहां पे व्यवहार करना है ना। तो बाहर ऐसे ही कंटिन्यूअसली एक स्टिमुलेशन है तो उनको पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है, मगर उनके अंदर उसका भी धैर्य नहीं है। एक डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट करने का भी उनमें धैर्य नहीं है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर को लेके परेशान है, पास्ट को लेके परेशान है। प्रेजेंट में आना है और जो नेसेसरी एक्शन लेना है वो लेना है। उसके लिए उनको ये एक प्रैक्टिस हेल्प करेगा। थैंक यू सर। यस। So should I? आरुषि? Yes, sir. Sir, first of all, thank you for giving us so much learning through this session. And it has been one of the best sessions till now. And I wanted to ask you that, as you said, when we are not in a good state of mind, we need to connect ourselves to environment and our breathing. So, but what about the situations where our condition of environment is not positive? Or maybe our breathing is not in a good state due to some illness. So what shall we do in such kind of condition? Yes. Again, we spoke about inner world. Okay. There is similarly outer world or inner world hai. There are situations, there are some conditions, there are some environmental problems which we cannot deal, we cannot change. उस वक्त हमें अंदर में ही चेंज लाना है ना। Yes, sir. हाँ, इफ आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरा पैर, अगर समझ लो मेरा पैर का हड्डी टूटा है और मुझे दौड़ना है 100 मीटर रेस, मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नाउ माई, है ना, मेरा पैर का हड्डी टूटा है, मैं दौड़ नहीं सकता। अब मन दौड़ना है वाला इच्छा पे है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, डिसोसिएट है ना। Yes, तो sir. यहाँ प्रेजेंट में आ जाएंगे तो वो जरूर वो उसे एक्सेप्ट करेंगे ना कि हाँ मेरा पैर में प्रॉब्लम, मैं नहीं दौड़ सकता। Okay, sir. सो उसकी ओर लेके आने में ये प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस बढ़ाने में, प्रेजेंट में आएंगे तो ही तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो पर्यावरण के हिसाब में हो या शारीरिक प्रॉब्लम। Okay, sir. हमारा मन कुछ और, इनर वर्ल्ड कुछ और चाह रहा है और आउटर वर्ल्ड में कुछ और है, कुछ नहीं हो सकता ना वहां पे। सो वो प्रेजेंट में आएंगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। Okay, sir. Thank you. Did I answer you, Arshi? Yeah. Yes. Yes. जानकी मूर्चनी, आपका हाथ उठाया, you can ask. So we also have a question in the chat box by Mrunal Joshi. Yes. They're asking how to observe thoughts. How to observe thoughts? Simple. हम सब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग, है ना। अभी जो आप स्क्रीन में मुझे देख रहे हो या ये जो भी स्क्रीन में चल रहा है वो देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग। थॉट्स भी सेम है। यू जस्ट सिट
And I would request every day 20 minutes इसके लिए दे दो. थॉट टाइम फिक्स कर लो अपना डेली शेड्यूल में. ये टाइम पे ओके, लेट ऑल द थॉट्स कम एट दैट टाइम. ये हम अभी काम कर रहे हैं तब आता है ना, हम बर्तन धो रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम नहा रहे हैं तब आता है. आप उसके लिए एक अलग टाइम दे दो ना, 10-20 मिनट, तब आ जाओ, है ना. या रेडी, यू टेक इट्स योर थॉट, यू आर क्रिएटिंग इट. Sit for observing it. It's very easy. Like TV, like anything, you can observe your thought also. एक बार अभी ट्राई करके देख लो. What is running in me? Yes, you can. हाँ, कुछ और करते हुए ये करना मुश्किल पड़ जाता. इसके लिए टाइम दे दो ना अलग से, 10-20 मिनट, है ना. ट्राई करके देखो 10 मिनट, आपका थॉट ऐसे भग जाएगा कि वो फिर आप सोचोगे ये आ क्यों नहीं रहा है ना. तब भी बैठे रहो कि I will wait, let it come. I hope I Thank you, answered. sir. Yes, sir. So if anyone has any more questions, please you can email it to us. And सर बहुत will- अच्छा लगा ये सेशन, और मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आप कहाँ से हैं? हम भारत से हैं. ठीक है सर. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सेशन. आप बहुत अच्छी तरह से समझाए. धन्यवाद. if there are any more questions, please do email it to us and we will get back to you. And thank you again, sir. Thank you so much for such a wonderful session. कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिल गया, and we got calm with that exercise and observation, coming back to the present. It was all very insightful, and I hope everyone enjoyed as much as I did. Yes. Thank you so much, sir. This is before I forget, this is a reminder to everyone, please fill your attendance sheets. If there is anyone who wants to volunteer with us at RFS, the link is in the chat box, and the feedback form is also in the chat box. If any queries, you can always reach out to us at RFS. And we provide internships, we provide volunteership. Students का free consultation होता है, free counseling होता है, and adults के लिए first session consultation session free रहेगा. So I think that is about it. Thank you everyone for joining us. Thank you Ajit sir so much again. It was a wonderful session. Yeah, thank you for giving me that opportunity. Okay, expect more. See you. Thank you all for listening. And stay mindful forever. Thank you everybody. Thank you sir. Thank you, sir. Good Thank night, you. sir. Bye. Thank you, Bye. sir. Good night. Good, sir. Thank you, sir. Thank you sir.